Hello everyone. So today we are going to start the chapter that name is Alien Planet, the Green Movement's Role. What do you mean by alien planets? Or what do you have an idea after reading this title? What do you think this chapter is about? About what? Do you have an idea that why this alien planet? Why not having or why a beautiful planet or something? So let's disclose the secret of this chapter. This chapter is totally about environment. How we are declining or destroying this environment through this pollution, and these four pollutions are affecting our green climate change and ozone layer declaration and many things, green movement, why acid rain, all these things. Definitely you know, most of you are from the science background, you are very well aware with this concept, that how this our environment, our activities which are affecting a lot on environment, how gradually we are destroying the earth, destroying or betraying our mother, because in India we call Dharti Mata. Then why these concepts come here? If you are considering this earth as your motherland, then why you are destroying it is like anything. So this chapter will gives you some insights that where we are wrong and what we need to do and how to do, and what are the things that should be recovered or that should be necessary for us. And this, why this chapter is there in your chapter, this is the big question for you. The answer of this is that you are the future of India, not India, you are the future of this earth. And you are the policy maker of the earth. If you are not aware about this many things that we are wrong here and we are right here, definitely you will not complete or you will not give a successful life to your generation. So therefore this chapter is there in your textbook to teach, to realize, to give knowledge that this is our environment that we have destroyed. And alien planets means Tati Dhati, a suffering planet. Planet क्या है, वो suffer कर रहा है. Why? Because of our human activities. We are destroying like anything that we don't care about any pollutions. Even government has banned the plastic, though we are using nowadays. What is the reason? Noise pollution is there, air pollution is there, water pollution is there. What pollution is that? We are doing this pollution more and more and more. There is no controlling it. So let's see how this chapter begins. And this green movement, अगर हम बात करें, जो first national wide green party was established in 1972. This I have written only some facts that you have to remember and write down in your textbook. So आज का homework भी यही रहेगा. तो ये green movement है कब, एक decade की, यानी कि
मैकेनिस्टिक व्यू टू हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। अगर ट्रांसफर कहाँ पे होता है, ये पार्टीज तो दोनों एस्टैब्लिश हो गए, ग्रीन मूवमेंट्स भी आ गए। पहले हम कहाँ पे सबकी बात कर रहे थे, अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज। पहले किस चीज की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी। अब किसकी बात हो रही है, ग्रीन मूवमेंट की बात हो रही है, इकोलॉजिकल व्यू की बात हो रही है। किस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ है। पहले की बात करें, बहुत बूढ़े लोग होंगे, वो कहते हमारे ज़माने में तो ऐसा था, जो हमारे दादा दादी होंगे वो कुछ कहेंगे। तो क्या कहते हैं कि अब हम इकोलॉजी की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, रिवर को क्लीन करने की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो मैकेनिस्टिक व्यू से हम कहाँ पे आ रहे हैं, हॉलिस्टिक और इकोनॉमिक व्यू में। और ये कैसा चेंज था, जैसे कि आपको साइंस वालों को डेफिनेटली पता ही होगा कि कॉपरनिकस है, उन्होंने क्या कहा था कि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पहले क्या ऐसी मान्यता थी कि जो पृथ्वी के आसपास सारे ग्रह और सन घूम रहे हैं, पर कॉपरनिकस ने क्या कहा कि अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जिस तरह से वो एक ड्रास्टिक चेंज था, उसी तरह से जो ये मैकेनिस्टिक व्यू टू इकोलॉजिकल एंड हॉलिस्टिक व्यू जो आया है वो वही है। देन क्या करते हैं, अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अर्थ की बात करें, दैट टू इट्स आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि विटामिन्स एंड विटामिन्स है, दैट टू आर नीडेड फॉर अस। डेफिनेटली अर्थ के लिए भी वो चाहिए। अगर हमको कुछ चीज़ें विटामिन्स नहीं मिल रही, विटामिन्स नहीं मिल रहे, मेटाबॉलिज्म हमको नहीं मिल रहा है, तो हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। उसी तरह से अर्थ को भी जो वाटर है, क्लीन एनवायरनमेंट है, एयर है, फ्रेश एयर है, वो सब भी नहीं मिलेगा, तो वो भी अर्थ भी डिस्ट्रॉय होगी। वो आज हम वही कर रहे हैं, हम उन चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो अर्थ वाइटल साइंस आर डिक्लाइनिंग हेल्थ। जब भी अर्थ पे कोई भी चेंजेस आए हैं तो उसका क्या, डिक्लाइनिंग हेल्थ, हमारी हेल्थ पे भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वी आर द रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। आप जानते हो कि हम नहीं जानते कि ह्यूमन बीइंग्स की फर्स्ट जनरेशन कौन थी। हम कहते मानव जाति कब पैदा हुई, वी डोंट नो। पर पृथ्वी कब से है, हजारों करोड़ों साल से ही है। तो जिस तरह से हम उन लोगों ने हमको दी है, उसी तरह से हम ये जो पृथ्वी है वो दूसरों लोगों को भी, हमारे जो आने वाली जनरेशन के लिए भी है। तो हम कोई इसके मालिक नहीं है कि हम इसको हम जब चाहे तब बिगाड़ दें। हम इसके सिर्फ ट्रस्टी हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ वक्त के लिए, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल, राइट। हमको एक ना एक दिन तो मरना ही है, तो हम इसके ट्रस्टी हैं, ना कि उसके संभालने वाले, उनके मालिक। तो ऐसी बात करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 बाय वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, कब आया, 1987 में द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उन्होंने क्या कहा, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their needs। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आज आपकी भी जरूरत पूरी हो रही है, और आप इस तरह से आप उसको यूटिलाइज कीजिए कोई भी चीज़ों को, कि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन की जरूरत पूरी हो सके। तो इस तरह से इनका एक मोटो के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। देन आगे हम इस चैप्टर की बात करें तो वहाँ पे एक जू की बात की गई है, दैट वाज सेटल्ड इन लुसाका जामिया। लुसाका जामिया में ऐसा है, वहाँ पे नोटिस लिखी हुई है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अगर आप जू में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पे यू विल नॉट फाइंड एनी एनिमल्स ओवर देयर, पर आप क्या वहाँ पे फाइंड करोगे, ओनली मिरर्स। नाउ यू मस्ट हैव आइडिया दैट अगर आप मिरर को देख रहे हैं तो आप मिरर में आप ही दिखोगे, यानी यू आर द ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन दी अर्थ। तो हम हैं वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के बहुत सारे बहुत बड़े डेंजरस एनिमल हैं जो पृथ्वी को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो ये यहाँ तक आपका चैप्टर रखते हैं। तो आज हमने क्या किया कि ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वाइड नेशन की एस्टैब्लिश पार्टी कब स्टार्ट हुई, किस तरह से उसका व्यू आया, मैकेनिक व्यू से हॉलिस्टिक व्यू तक आए, और उसका एक एग्जाम्पल देके समझा कि कॉपरनिकस का एक एग्जाम्पल
साथ एक मिनट जब भी असाइनमेंट आएगा तो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट एंड जो टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है उसके साथ ही आप उनको भेजना होगा। थैंक यू।